My dear students, in this video I am going to explain how we can use the identity a plus b whole square in the square of binomial term. So let's do one example. Okay, let's do one example how we can use the identity a plus b whole square in this type question. So even if we can use also the identity of a minus b whole square here also, but here I am going to apply the identity a plus b whole square. Okay, so firstly we should know what is the identity of a plus b whole square. This is equal to a square plus b square plus 2ab 2ab. So this is plus 2ab. So the square of the binomial term. Binomial means in which there are two terms. So how we can find the square of binomial term? So we can use the identity a plus b whole square. Either we can use a minus b whole square also. So here firstly I am going to explain how we can use this identity. So dear students, as you can see, this is a, this is b, and here are two terms. Binomial means two terms inside of the bracket. Here are also two terms. So if we will compare, अगर हम इसमें comparison करें तो आप यहाँ देखिए, जो यहाँ पर a है, a is positive, तो first term you will compare with first term, and here it is minus is equal to minus 3x. यहाँ पर सबसे पहला आपका कंपैरिजन बड़ा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने कंपैरिजन अच्छे से कर लिया कि व्हाट इज़ ए व्हाट इज़ बी, ओके, सो देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंट ऑफ ए एंड बी properly. The first thing is that compare the value of a and b properly. So a is positive, so here is minus 3x, so plus minus minus, so it means we are getting the value of a minus 3x. जब हम ऊपर से कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू जो है that is coming minus 3x. So in similar way we will compare the value of b. So here you can see b is positive, यानी कि plus b is equal to, here is also positive, this is positive plus 2yz. So you can see the value of b प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर कोई डिफर साइन नहीं है, सेम साइन है, तो इट मीन्स b इज इक्वल टू 2yz. तो इस तरह से आप पहले a और b की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. यानी कि आपने a की जगह माइनस 3x पुट करने हैं और b की जगह 2yz पुट करने हैं. तो व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यूज, ओके, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो आपने पूरी की पूरी आइडेंटिटी में इसको पुट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो पहले आप देख लीजिए आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड क्या है, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो जब आप यहाँ ए की वैल्यू भरेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 3x प्लस बी की वैल्यू आप भरेंगे 2yz, क्योंकि बी हमारे पास पॉजिटिव है तो प्लस का प्लस 2yz एंड होल स्क्वायर. नाउ इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि मैंने लेफ्ट में पुट कर दिया, अब मुझे राइट में भी पुट करना है. तो राइट में यू कैन सी इट इज़ ए स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ ए. नाउ वी आर अवेयर इफ ए इज एनी पॉजिटिव नंबर और सिंगल टर्म तो आप ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ देयर इज़ नेगेटिव, ओके, एंड मोर देन वन टर्म, तो आप बेटा उसमें ब्रैकेट यूज़ करोगे. तो माइनस 3x होल स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा. यू कांट राइट लाइक दिस माइनस 3x स्क्वायर, यू कांट राइट लाइक दिस. दिस इज टोटली रॉन्ग because it is showing that square is only with x, not with 3 and not with minus also. So the value of a is minus 3x, तो आपको पूरे की पूरे को होल स्क्वायर करना पड़ेगा.
तो use the bracket, then plus b square. So I am writing here, what is b? 2yz plus 2yz whole square, 2yz whole square. इसमें भी ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर मोर देन वन फैक्टर. 2 इसका फैक्टर है, y इसका फैक्टर है, z इसका फैक्टर है, दे ऑल आर टुगेदर. अगेन आई कांट राइट 2yz स्क्वायर, ये नहीं कि बस हमने स्क्वायर लगाना है और छोड़ दिया. तो यूज़ ब्रैकेट ऑल्सो बिकॉज when you will use the bracket then it is very clear that square is with each of the term. So this is the way to write. Now after a square plus b square there is plus 2ab, so plus 2, we are using this 2 from the identity. Then a and b means a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे a की वैल्यू भरनी है. अगेन यूज़ द ब्रैकेट, पुट द वैल्यू ऑफ ए -3x, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, आप ऐसे ही लिख दोगे तो 2 - 3x दिखेगा, तो मल्टीप्लाई कहीं अप्लाई नहीं होगा. ओके, एंड देन b प्लस 2a, ए हमने पुट कर दिया. ना पुट द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो. सो b इज़ 2yz, तो 2 लिख दीजिए, y लिख दीजिए और z लिख दीजिए, एंड फाइनली ब्रैकेट क्लोज्ड. So in this order you have to put the firstly values a and b properly. Now we will solve its right hand side only, because left hand side it is showing question only. So its left hand side is showing its question in the form of question only. So we will solve its right hand side now. So where it is equal, so I am using equal sign. After equal sign -3x होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्लियर है बेटा, यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और x का भी स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज़ पॉजिटिव ऑलवेज. कोई भी नेगेटिव नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो साइन तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, माइनस का जो स्क्वायर बनता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है. एंड 3 स्क्वायर इज़ 9, एंड x का स्क्वायर करेंगे तो इट इज़ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स यू कैन सी जो b था वो था 2yz. तो अगेन हेयर वी आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ ईच टर्म. 2 का भी होगा, y का भी होगा, z का भी होगा, जितने भी ब्रैकेट के अंदर है उन सब का स्क्वायर आप करेंगे. तो 2 स्क्वायर इज़ 4, 1 by 1 यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ ईच टर्म, ईच फैक्टर्स. सो y का बन जाएगा y स्क्वायर एंड z का बन जाएगा z स्क्वायर. ओके, नाउ लास्ट वन यू कैन सी हेयर देयर इज़ नो एनी नंबर एंड टर्म इन फ्रैक्शन. सारे एक साथ ही है, 2 है, -3 है, 2yz है, साथ में x भी है. तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज, दे आर मल्टीप्लाइंग ऑल 2, 3x and 2yz, they all are multiplying. But before multiplying it is it's very important that when we are multiplying anything, any number, any terms, so firstly we have to multiply the sign. Sign is very important. So as you can see 2 का जो साइन है प्लस है, 3 का जो साइन है माइनस है, और यहाँ भी 2 का जो साइन है वो प्लस है. तो अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस, वी आर गेटिंग ओनली माइनस साइन. तो मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, देयर इज़ नो स्पेस. So after this what we can do, we can multiply 2, 3, -3 and 2yz. So we will multiply number with number and variable with variable and sign with sign. So plus minus is minus. 3 2s are 6, 6 2s are 12. तो यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 2s are 6 and 6 2s are 12. तो नंबर आ गया 12. Now we can check the variable. Here is x and here is y and z. So there is no like term. So all are different. Like variable कोई नहीं है, तो x, y और z साथ में आ जाएगा. Okay, so in this way we can expand the binomial term which is -3x plus 2yz whole square.